Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is about photosynthetic pigments and photosystem from chapter 4 Bioenergetics for class first year biology. Now first we discuss about the learning objectives. Today we want to understand the term photosynthetic pigment, in which we discuss about the chlorophyll molecules and carotenoids. And our second topic is about photosystem, in which we discuss about the photosystem 1 and photosystem 2. Now first we discuss about the photosynthetic pigment. The photosynthetic pigment can be defined as these pigments are utilized in photosynthesis, which they capture the energy from sunlight. That's why they are called as photosynthetic pigments. Now there are two types of photosynthetic pigments. Number 1, chlorophyll molecules, and number 2, carotenoids. In eukaryotic organism, these photosynthetic pigments are present in the chloroplast. In our chapter 1 we have already discussed the structure of the chloroplast. Now we also discuss some important points of the chloroplast. Now there are three basic parts, that is they are the double membrane bonded structure, their matrix is called stroma, and when the thylakoids stack together and they form the granum. So there are three main parts, that is double membrane bonded structure, which is called as envelope, and the second one is granum, and the third one is stroma. The thylakoid membrane, this thylakoid discs when stacked together and which form the granum, this thylakoid contain the chlorophyll molecules, and they are responsible for take part in photosynthesis, which now we have to discuss the structure of chlorophyll in our next slide. But we know that these thylakoid discs contain the chlorophyll molecules, and the necessary chemical compounds, various chemical and enzymes, coenzymes are present in the matrix of the chloroplast, which is called stroma, which is also responsible for the photosynthesis. The process light dependent reaction which takes place in granum, which are thylakoid, and the food manufacturing process, that is the light independent process or Calvin cycle, takes place in the stroma of the chloroplast. So we have already discussed their structure in detail in our chapter 1. So today only we revise it, which process of photosynthesis takes place in chloroplast. There are two process photosynthesis, that is photosynthesis independent reaction and photosynthesis dependent reaction. The independent photosynthesis reactions takes place in stroma, and photosynthesis light dependent reaction takes place in thylakoid. तो हमने बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, और इसके अंदर जो हमने इसमें जो मेजर जो हमने रिवाइज कर रहे हैं या हम देखना चाह रहे हैं वो ये कि जो हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो थैलाकाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और फर्दर मोर ये कि जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स हैं वो वेरियस केमिकल कंपाउंड्स स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। और आपके पास जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो आपके पास और फोटोसिंथेसिस का वो किधर टेक्स प्लेस करेगा, अगर थैलाकाइड में, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो टेक्स प्लेस करेगा स्टोमा के अंदर। तो ये तो था क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि ये फोटोसिंथेसिस में कैसे ये हेल्प करता है और कौन कौन से प्रोसेस इधर टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं। फर्दरमोर अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बेसिकली मोस्टली ऑब्जर्व द वायलेट ब्लू वेवलेंथ that is ranges from 390 to 430 nanometer of the visible spectrum, while it is also absorb the maximum light
range, that is red wavelength, that is 670 to 700 nanometer wavelength of visible light spectrum. हमने ये पहले भी जो है एक्शन स्पेक्ट्रम और ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में डिस्कस किया था कि जो मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और कौन से पिगमेंट कौन सी रेंज को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने इस जो एक्शन स्पेक्ट्रम में इस बात को कंफर्म किया था कि वायलेट ब्लू रीजन और रेड वेवलेंथ वाला रीजन जो है वो मैक्सिमम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बेसिकली जो है अगर आ जाए कि क्लोरोफिल कौन से रीजन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं तो दो रीजन है, एक वायलेट ब्लू रीजन है और एक हमारे पास रेड वेवलेंथ वाला रीजन है। फिर इसके बाद जो है बेसिकली जो क्लोरोफिल है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, दैट इज़ हेड एंड टेल। बेसिकली ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है और इसके बेसिकली टू पार्ट्स हैं, एक को हम हेड कहते हैं और एक को टेल कहते हैं, जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हेड को डिस्कस करते हैं। हेड ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 4 नाइट्रोजन रिंग्स कॉल्ड द पायरोल रिंग्स। बेसिकली ये नाइट्रोजन की 4 रिंग्स बनते हैं जिनको हम पायरोल रिंग्स कहते हैं, जो कि अटैच होते हैं विच दीज 4 रिंग्स अटैच टुगेदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एटम। जो आपके पास मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है उसकी मदद से ये 4 रिंग आपस में अटैच होते हैं और जब ये 4 रिंग्स आपस में अटैच हो जाते हैं देन दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज पोरोफायरिन रिंग्स। और ये जो आपके पास हेड रीजन होता है बेसिकली दे आर पोलर रीजन, दैट्स व्हाई दे आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक से मुराद ये है वाटर लविंग है, दैट्स व्हाई दे लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द ग्रैनुलम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो सरफेस के ऊपर जो हमारे पास जो रीजन होता है जो क्लोरोफिल का वो हेड रीजन होता है। और यह आपको पहले मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थैलाकोइड डिस्क में प्रेजेंट होते हैं और आपको पता है कि थैलाकोइड जब वन आफ्टर द अनदर जब स्टाक हो जाती है तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम ग्रैनुलम बोलते हैं। तो बेसिकली जो पोलर रीजन है वो ऑन द सरफेस ऑफ थैलाकोइड प्रेजेंट होगा। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज टेल। टेल कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज कॉल्ड फाइटोल चेन। और बेसिकली दिस फाइटोल चेन जो आपके पास है इट इज अटैच टू वन ऑफ द पायरोल रिंग। ये एक साइड पे जो है पायरोल रिंग के साथ अटैच होती है और जो ये आपके पास टेल है इट इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, थस इट इज एम्बेडेड इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन। ये जो है वो नॉन पोलर है जिसकी वजह से ये इनसाइड द थैलाकोइड मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होगी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कैन बी डिफरेंट ओनली फॉर द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द पोरफिन। जो इनके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। उनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं विच इज अटैच टू द पोरफिन, जो कि पोरफिन रिंग के साथ अटैच हुए होते हैं, जिसको भी हम फर्दर जो है डायग्राम में डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल ए के पास जो ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप है और जो क्लोरोफिल बी के पास जो ग्रुप होता है वो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है जिसे आप CHO ग्रुप कहेंगे। और जो आपके पास क्लोरोफिल ए के पास जो ग्रुप है उसे आप मिथाइल ग्रुप CH3 कहेंगे। ये ग्रुप अटैच होता है और जो इन दोनों का जो फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला बनता है वो ये क्लोरोफिल ए का आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो C55H72O5N4 Mg बनेगा और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH3 है। जबकि आपके पास क्लोरोफिल बी का अगर आप फार्मूला जो बनेगा उसमें आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट है और उसका जो फार्मूला बनेगा वो C55H70O6N4 Mg बनेगा। फर्दर अब हम इसके स्ट्रक्चर को डायग्राम से डिस्कस करते हैं। तो आपके पास इधर आप देख सकते हैं ये आपके पास CH3, ये आपके पास पहले तो आप देखेंगे 4 रिंग्स है, 1 2 3 और ये 4। ये 4 रिंग्स आपकी मैग्नीशियम आयन की मदद से अटैच हो रही है। एक रिंग को हम पायरोल रिंग कहेंगे और ये आपके पास 4 क्या बनी है 1 2 3 4 पायरोल रिंग्स बन रही हैं विच आर अटैच विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम एटम, जो मैग्नीशियम एटम की मदद से अटैच्ड हो रही हैं। और ये पूरा रीजन, ये जो आपके पास पूरा रीजन है ये सारा का सारा रीजन जो आपके पास है ये हेड रीजन कहलाएगा
और इसके बाद इसकी एक पायरोल रिंग के साथ टेल क्या अटैच्ड है, जो आपके पास होगी, आपने बात याद रखनी है, जो आपके पास है किसकी बनी होगी, वो हाइड्रोकार्बन्स की बनी होगी। तो ये तो किसके बारे में स्ट्रक्चर था, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में स्ट्रक्चर था कि ये बेसिकली किसका बना होता है कि आपका पोरोफिन रिंग, इस पूरे हेड को पोरोफिन रिंग बोलेंगे, और अगर एक रिंग की बात करेंगे तो इसे पायरोल रिंग करेंगे। जब चारों रिंग मैग्नीशियम आयन की मदद से अटैच होते तो पोरफायरिन रिंग बन जाएगा, और उसके साथ और पायरोल रिंग के साथ जो आप एक जगह आपके साथ क्या अटैच हुई होती है, टेल अटैच हुई होती है। और इसी तरह आपके पास एक हेड का रीजन हो जाता है और एक टेल का रीजन हो जाता है। ये पोलर रीजन है और ये नॉन पोलर रीजन है। ये सरफेस ऑफ द थैलेकाइड पे प्रेजेंट होता है और ये एम्बेडेड होता है इन द थैलेकाइड मेम्ब्रेन। जबकि आपके पास जो क्लोरोफिल ए में जो है वो आपके पास CH3 ग्रुप मौजूद है, जिसे हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, और आपके पास क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप मौजूद है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है ये डिफरेंस है इनके दरमियान में, क्लोरोफिल और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल के दरमियान में, कि इनके पास जो है फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, जो पायरोल रिंग के साथ अटैच होते हैं। अगर तो CH3 ग्रुप अटैच होगा तो आपके पास क्लोरोफिल ए होगा, अगर CHO ग्रुप अटैच होगा तो आपके पास क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल होगा। तो ये तो था क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में। फर्दर हम डिस्कस करते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। जो कैरोटीनॉइड्स है बेसिकली, ये कैरोटीनॉइड्स में दो आपके पास इंक्लूडेड हैं, जिनमें आप कैरोटीन और ज़ेंथोफिल के बारे में पढ़ेंगे। दे आर येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट्स। और कैरोटीनॉइड्स प्ले 2 इम्पोर्टेंट रोल्स इन द प्लांट। सबसे पहले तो यही है कि दे एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर लाइट एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द एसेसिव पिगमेंट। बेसिकली ये भी लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो लाइट ऑब्जॉर्व करके ये फर्दर जो है ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये लाइट ऑब्जॉर्व करें डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि ट्रांसफ़र करते हैं लाइट एनर्जी को टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स की तरफ। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एसेसिव पिगमेंट। दूसरी बात ये है कि दे आर द फोटो प्रोटेक्टर। बेसिकली जो एक्सेस लाइट एनर्जी है, इंटेंस लाइट एनर्जी है, उससे को कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके क्या इसकी मदद से क्या होगा कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटेक्ट रहेंगे और उनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे फ्रॉम द इंटेंस लाइट एंड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस। तो सेकंड मेजर इसका फंक्शन ये है कि दे आर एक्ट एज अ फोटो प्रोटेक्टर बिकॉज दे प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंटेंस लाइट एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन बाय ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन द फोटोसिंथेसिस। और ये इसका सेकंड मेजर रोल था कि ये फोटो प्रोटेक्टर के तौर पे जो है कैरोटीनॉइड्स प्ले करते हैं और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को डैमेज होने से बचाते हैं, और ये साथ साथ हेल्प करते हैं इनसेक्ट, बर्ड्स और अदर एनिमल्स को फॉर द पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल के लिए। तो ये तो कैरोटीनॉइड्स का मेजर रोल था। और बेसिकली इन इसके जो क्योंकि ये ट्रांसफ़र करते हैं लाइट एनर्जी को फ्रॉम जो एब्जॉर्ब कर गया टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ एसेसिव पिगमेंट्स। फर्दर मोर जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो आपके पास ऑरेंज रेड पिगमेंट्स हैं। दे आर कंपोज ऑफ द आइसोप्रीन यूनिट्स के बने हुए हैं, जिसको हमने अपने सेकंड चैप्टर में हम ये आइसोप्रीन यूनिट्स जो हैं जो इनको हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। और उसके अलावा आपको ये पता है कि ये भी फोटोसिंथेटिक यूक्रोट्स, ये तमाम फोटोसिंथेटिक यूक्रोट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, और इसकी जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो हमारे पास बीटा कैरोटीन है। इसके बाद आपके पास ज़ेंथोफिल्स हैं। ज़ेंथोफिल्स येलो इन कलर हैं, ये भी कंपोज हुए हैं आइसोप्रीन यूनिट के, और इसकी जो एग्जांपल है वो ल्यूटिन है, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ेंथोफिल है। और ल्यूटिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द येलो कलर इन द फॉलिएज इन ऑटम। जो आपको पत्ते पीले कलर के नज़र आ रहे होते हैं, बेसिकली ऑटम के महीने में, फिजा के महीने में उनके अंदर क्या होता है, ज़ेंथोफिल ल्यूटिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो हमें जो पत्ते हैं वो येलो कलर के नज़र आ रहे होते हैं। ये आपको जो जितने भी हमारे पास कैरोटीनॉइड्स जो प्रेजेंट होते हैं बेसिकली दे आर एसेसिव पिगमेंट्स। तो ये दो पिगमेंट्स है कैरोटीनॉइड्स में जिनको हमने डिस्कस किया, और बेसिकली ये हमारे पास जो पिगमेंट्स होते हैं
दे आर एसेसिव पिगमेंट्स, और इनका जो मेजर रोल यही है, दे एब्जॉर्ब द एक्सेस sunlight and then transfer the energy to the chlorophyll A molecules and also provide the photo protection to the chlorophyll A molecule from the intense light and oxidation of chlorophyll molecule, जो है ना, ताकि जो है वो ऑक्सीडेशन ना हो जाए क्लोरोफिल मोलिक्यूल की, उनका स्ट्रक्चर डैमेज ना हो जाए, ये उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो है ये डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं करते बल्कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स की तरफ। इस वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, एसेसरी पिगमेंट्स कहलाएंगे, या ये हमारे पास एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया कैरोटीनॉइड्स के बारे में। अब हम फोटोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिस्टम्स क्या है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इन अ थैलाकाइड मेम्ब्रेन, दीज क्लस्टर्स आर कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। जो आपके पास क्लस्टर की फॉर्म में थैलाकाइड मेम्ब्रेन में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फोटोसिस्टम्स कहेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आपको पता है कि जो है वो टू पार्ट्स हैं, एक को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर कहेंगे। इसको हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। जो आपके पास जो थैलाकाइड डिस्क है, थैलाकाइड डिस्क के अंदर आपके पास क्या क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जो क्लोरोफिल के जिस थैलाकाइड्स के पास ये डिस्क के पास आपके पास जो मौजूद होंगे, कौन से क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, उनको वो मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स उनको हम कहेंगे। तो हमने याद रखना एंटीना कॉम्प्लेक्स में बेसिकली कौन से मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स, दे मेकिंग द एंटीना कॉम्प्लेक्स। और जिनके पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होंगे और आपके पास क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स होंगे और उसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद होगी, तो वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होंगे, तो वो बेसिकली आपका क्या बनाएंगे, रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर के अंदर कौन सा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होते हैं, विच मेक्स अ रिएक्शन सेंटर। तो फोटो सिस्टम में जो आपके पास जो थैलाकाइड मेम्ब्रेन है, थैलाकाइड मेम्ब्रेन में क्लस्टर और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। उनमें से कुछ हमारे पास जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बनाते हैं और कुछ हमारे पास रिएक्शन सेंटर बनाते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो बेसिकली क्या करेगा, वो आपके पास जो है जो सनलाइट की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा और फर्दर मोर जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देगा, उस एनर्जी को रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देगा। और रिएक्शन सेंटर जो है वो जब क्लोरोफिल ए के जो उस को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो उसकी जब एनर्जी ज़्यादा होगी, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और वो फर्दर मोर जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे और जो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूटिलाइज करके एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, और जिससे क्या होगा कि हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होगी। मतलब ये कि जो सनलाइट है, जो सनलाइट यहाँ से यूटिलाइज हुई है, जो फोटोन की फॉर्म में सनलाइट आई थी, सन जो आपके पास लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी कि एडीपी जो एडेनिन डाइफॉस्फेट है वो एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जिसकी मदद से जो है एटीपी की प्रोडक्शन होगी आपके पास। तो बेसिकली ये फोटो सिस्टम जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, मतलब कि एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि फर्दर मोर जो है वो इस्तेमाल होंगे फूड मैन्युफैक्चरिंग में, कि फूड का प्रोसेस बनाने में जो आपका फूड के मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनेगा उसमें जो है ये एटीपी जो है यूटिलाइज होगी और फूड बनाएगी। तो इसमें बेसिकली जो फोटो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें से एक को हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और एक को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। एंटीना कॉम्प्लेक्स में आपने ये बात की पॉइंट याद रखनी है कि इसके पास क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स हैं। बेसिकली दे एब्जॉर्ब द सनलाइट एंड देन ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल किधर मौजूद है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल आपके पास रिएक्शन सेंटर के पास मौजूद है। क्लोरोफिल ए मौजूद है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहाँ पे मौजूद है, विच आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन
एंड यूटिलाइज द एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा जो सनलाइट जो आगे जो लाइट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको यूटिलाइज करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में आएगी, एटीपी की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। और दिस एटीपी इज यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द शुगर कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम प्लांट्स के अंदर है वो बनती है। और उसकी मदद से क्या होता है कि आपके जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो ये बनते हैं और वो अपने जो मेटाबॉलिज्म है, जो प्लांट अपना मेटाबॉलिज्म है उसको बरकरार रखता है। तो ये तो था फोटो सिस्टम के बारे में कि फोटो सिस्टम कैसे वर्क कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि फोटो सिस्टम जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर कितने प्रेजेंट हैं। तो मेजर आपके पास दो फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है, एक को फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, एक को फोटो सिस्टम 2 कहेंगे। फोटो सिस्टम 1 जो है जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो रिएक्शन सेंटर में मौजूद है, जो सनलाइट को कौन सी सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट है 700 नैनोमीटर वाली उसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए इसको हम P700 भी कहते हैं। और इसको फोटो सिस्टम 1 बेसिकली जो है जो रिएक्शन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो मैक्सिमम सनलाइट 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वो जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करता है। दैट्स वाई इस फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं। और ये बात याद रखनी है कि ये जो इनके नेम है दे आर नेम फॉर द ऑर्डर इन विच दे वर डिस्कवर्ड। इनके नाम इनके जो है वो डिस्कवर के हिसाब से रखे गए हैं, नॉट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर इन द थैलाकाइड मेम्ब्रेन। और इनके इस ऑर्डर पर नहीं रखे गए कि थैलाकाइड में ये किस वो इनकी प्रेजेंस कैसे है। मिसाल के तौर पर अगर फोटो सिस्टम 1 है और इसका हमने कहा कि P700 को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है तो यहाँ तो इसको 680 पहले आता है, आपको पता है 680 वेवलेंथ पहले आ रही है, तो 680 है को इसको ऑब्जॉर्व करना चाहिए था। नहीं, इसके हमने डिस्कवरी के हिसाब से करा है। सबसे पहले 700 नैनोमीटर वाला एब्जॉर्ब हुआ था, डिस्कवर्ड हुआ था। दैट्स वाई हमने ये क्या कहा कि ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है। फिर सेकंड टाइम पे हमारे पास जो उसके बाद 700 वाले के बाद जो हमारे पास जो डिस्कवर्ड हुआ था 680 वाला डिस्कवर्ड हुआ था, तो इसलिए इसको हमने फोटो सिस्टम 2 कहा। तो इसकी डिस्कवरी के ऊपर हमने इनका ऑर्डर जो है इनकी डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इनकी थैलाकाइड के पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसकी बिना पर ये इसकी डिस्कवरी डिपेंड नहीं करती। तो ये तो था फोटो सिस्टम्स के बारे में कि फोटो सिस्टम कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करता है और किस बिना पर इनको फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 कहते हैं। और इनका मेजर प्रोसेस क्या होता है कि जो एंटीना कॉम्प्लेक्स से जब एनर्जी फर्दर मोर रिएक्शन सेंटर के पास जाती है, तो रिएक्शन सेंटर जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन जो सेटेड हुआ होता है उससे एनर्जी को यूटिलाइज करेगा और जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा फोटो सिस्टम का मेजर फंक्शन है कि वो जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली जब आपके पास क्लोरोफिल जो है मॉलिक्यूल्स जब थैलाकाइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं तो वो रिड्यूस फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब वो फोटोन को एक्सेप्ट करेंगे, लाइट एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, तो उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा, और जब उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या की जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस्तेमाल करेगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास मुंतकिल हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। जब वो एटीपी में कन्वर्ट कर देगा तो इससे हमें ये बात पता चल जाएगी कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये जो एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुई है इसकी वजह से क्या हुआ है कि लाइट एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, आपके पास केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। जो एटीपी है जिसको हम फर्दर जो है वो शुगर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, शुगर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ये फोटो सिस्टम्स कर रहे होते हैं कि एटीपी की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। और फर्दर मोर इसको जब इस लाइट को जो एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो एटीपी जो में जब बना दिया गया है, इसके बाद इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, फूड जो है या शुगर बनाई जाए। तो ये तो था फोटो सिस्टम के बारे में कि कैसे फोटो सिस्टम वर्क कर रहा होता है। तो आज जो हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स
और साथ साथ उनके अरेंजमेंट्स को देखा और मुख्तलिफ एसेसरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। और इसके बाद हमने फ़ोटो सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ा कि ये कैसे जो हैं वो जो फोटोसिंथेसिस में जो हैं कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज तो हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फोटो सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट टाइम जो है हम रोल ऑफ वाटर, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इंशाल्लाह मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।